Good morning, students. As you know, topic arithmetic mean is going on, and we have already learned about individual series and discrete series. Now it's time for frequency distribution series, which is also known as continuous series. So already there is one question on the board. Let's see किस तरह से इसको solve करते हैं. सबसे पहले question समझ लेते हैं. The above table shows marks in economics secured by students of class 11 in your school in their examination. Calculate mean marks using direct method. आपको मैं बता दूं, just like individual series and discrete series, continuous series के क्वेश्चन को भी हम तीन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं. डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड विच इज ऑल्सो नोन एज शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. ओके, कॉन्टिन्यूस सीरीज को आप किस तरह से पहचानेंगे ये समझ लीजिए. व्हेन इन योर डेटा क्लास इंटरवल विल बी गिवन, क्लास इंटरवल लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके की इंफॉर्मेशन जब आपको डेटा में मिलेगी, सो दैट सीरीज विल बी नोन एज कॉन्टिन्यूस सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला देख लेते हैं. मीन इक्वल्स टू सिग्मा fm upon sigma f. This will be the formula of calculating arithmetic mean with the help of continuous series. Okay. First thing is marks, that is also known as class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. After that we will write number of students, which is also known as frequency. Here you can see 20, 24, 40, 36 and 20. Sum of the frequency is 6 plus 4, 10, 140. This is known as sigma f. अब मैं आपको जस्ट क्लियर कर देता हूँ. टोटल 140 स्टूडेंट्स हैं क्लास 11th में और ये उनके मार्क्स हैं. मार्क्स की रेंज इस तरह से है. 0 to 10 मार्क्स 20 स्टूडेंट्स के आए हैं, 10 to 20 मार्क्स 24 स्टूडेंट्स के हैं, 20 to 30 मार्क्स 40 स्टूडेंट्स के हैं, एंड सो ऑन. हमको करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज मार्क्स. ओके, तो एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आपको 1 और 2 स्टेप्स करने होंगे. सबसे पहले स्टेप में वी हैव टू फाइंड आउट मिड वैल्यू एंड दैट इज नोन एज m. मिड वैल्यू फाइंड हम कैसे करते हैं, यू कैन सी क्लास इंटरवल इज गिवन. दिस इज क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20. तो यहाँ पर जो ये 0 है, दिस इज L1 एंड 10 इज L2. ओके, लोएस्ट एंड लार्जेस्ट, 0 to 10. तो जब आपको मिड वैल्यू फाइंड करनी होगी, मिड वैल्यू, so there is formula of calculating mid value. So in your series, this is lower limit and this is upper limit. 0 is lower limit, 10 is upper limit. Same way here 10 is lower limit and 20 is upper limit. So for the calculation of mid value, there is one formula, that is L1 plus L2 upon 2. फर्स्ट सीरीज में आप देखेंगे 0 and 10. आपकी जो लोअर लिमिट है दैट इज 0 और अपर लिमिट इज 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 2, इट विल कम 5. मैंने आपको ऐसे कैलकुलेट करके दिखाया है. वैसे तो आप ये कैलकुलेशन वर्बली भी कर सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट. 0 to 10, सो मिड वैल्यू विल कम 5. देन 10 to 20. अगेन अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 10 plus 20 upon 2, 10 plus 20 will be 30 divided by 2, that will come 15. Or otherwise it is very easy to calculate their mid value. Then 20 to 30, mid value will come 25, here 35 and 45.
It's very simple to calculate. After calculating mid value, our next step will be we'll multiply frequency with mid value, that is also known as Fm. Frequency will be multiplied with mid value. So here you can see 20 will be multiplied by 5, 25 is a 100. Then 24 will be multiplied by 15, that will come 360. 25 will be multiplied by 40, 500, and 25 for the 100, 1000. 35 will be multiplied by 36, that will come 1260. And 45 will be multiplied by 20, it will come 900. After that, simply you will take total of Fm. The total of Fm is known as sigma Fm. And this total will come 3620. Now with the help of that formula we will calculate mean. X bar equals to sigma Fm upon sigma F. 3620 is sigma Fm upon sigma F is 140, 0 so 0 cancel. 362 will be divided by 40. Simple answer will come 25.86. So this was your direct method, and after that we will learn indirect method. तो डायरेक्ट मेथड के बाद सेम क्वेश्चन को हम इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे. देखिए थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्स विल कम एज इट इज. This is also known as class interval. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and 40 to 50. After that, we will write number of students, that is also known as frequency. 20, 24, 40, 36 and 20. And again we will calculate mid value. First of all we will calculate mid value, that is known as m. और आप इसको x भी लिख सकते हैं. कुछ बुक्स ने, कुछ राइटर्स ने इस m मिड वैल्यू को m की जगह x लिखा है. दैट इज ऑल्सो ओके, नो प्रॉब्लम इन इट. 0 to 10, mid value will come 5, then 15, 25, 35 and 45. Okay. Indirect method is also known as shortcut method. Assuming mean method भी बोलते हैं इसको. इसमें आपको mean को assume कर लेना है, और आपको assume कहाँ करना है? mid value में से. Okay. तो अब आप mid value में से any natural number you can assume as your mean. बट मैं आपको अगेन सजेस्ट करूंगा कि मीडियोकर वैल्यू आप मीन अज्यूम करिए. तो हियर वी आर टेकिंग 25 एज आर अज्यूम्ड मीन. सो आर ए इज 25 एंड नाउ वी हैव टू टेक डेविएशन, दैट विल बी नोन एज डी एम माइनस ए. ओके. So in first series you can see your mid value is 5. 5 minus 25 will come minus 20. Okay. Then 15 minus 25 will come minus 10. 25 minus 25 will come 0. 35 minus 25 will come 10. And 45 minus 25 will come 20. Like this we will calculate derivation m minus a. Our a is 25. अभी आपने देखा फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी का यूज करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी विल बी मल्टीप्लाइड विद डी, दैट इज नोन एज एफ डी. सो 20, ये प्लस का 20 है, इसको माइनस 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, रिजल्ट विल कम 400 बट इन माइनस बिकॉज प्लस माइनस माइनस. सेम वे 24 विल बी मल्टीप्लाइड विद minus 10, it will come 240 but in minus. 40 will be multiplied by 0 and result will come 0. Then 36 will be multiplied by 10
it will come 360. 20 will be multiplied by 20, that will come 400. Now we will calculate sigma FD, and here sigma F was also required, sigma F, that was 140. Now see how we will calculate sigma FD. माइनस का सम कर लेते हैं, माइनस का सम है 640, दिस इज इन माइनस, और ये जो प्लस के सम करते हैं दैट इज 760. तो 760 में से आप 640 को जब माइनस करते हैं तो प्लस 120 आ जाता है. तो सिग्मा एफ डी इक्वल्स टू 120. फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड इज a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ. हियर आई एम कैलकुलेटिंग. Our assuming mean is 25 and sigma FD is 120. Sigma F is 140. Mean goes to 25. 0 to 0 cancel and 12 will be divided by 14. So when 12 will be divided by 14, the result will come 0.86. 25 plus 0.86, that is 25.86. Again you will have सेम आंसर जो आपका डायरेक्ट मेथड से था. ओके, एक बार फिर से देख लो. मार्क्स एज इट इज आ जाएंगे. उसके बाद हम मिड वैल्यू फाइंड करेंगे. मिड वैल्यू आपको मालूम है किस तरीके से फाइंड की जाती है. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. फ्रीक्वेंसी विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन. आफ्टर दैट जो मिड वैल्यू आपने फाइंड करी है इसमें आप मीन एज्यूम करके डेविएशन फाइंड करेंगे. एनी नेचुरल नंबर यू कैन एज्यूम एज योर मीन, बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ मीडियोकर सीरीज आप लीजिए. तो आपने 25 को मीन एज्यूम किया है और फिर डेविएशन लिया. 5 माइनस 25 दैट इज माइनस 20, 15 माइनस 25 एंड सो ऑन. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई किया, दैट इज नोन एज एफडी. और हमारा सिग्मा एफडी मीन सम ऑफ द एफडी इज 120. फॉर्मूला भी इसको अप्लाई कर दिया. मीन इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफडी अपॉन सिग्मा एफ एंड योर आंसर इज 25.86. इसके बाद हम सीखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड. ओके, तो सेम क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं. क्वेश्चन इज सेम 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and so on. And frequency is also same 20, 24, 40, 36 and 20. देखो बेटा, कुछ स्टेप्स तो कॉमन हैं जो आपने इनडायरेक्ट मेथड या जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, कुछ स्टेप्स तो कॉमन है उसकी तरह. सबसे पहले आप मार्क्स लिख लेंगे, दैट इज क्लास इंटरवल. देन आफ्टर दैट यू विल राइट मिड वैल्यू, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है आपको मालूम है, इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट. ओके, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 0 प्लस 10 अपॉन 2, इस तरह से ये 5 आया है. और फ्रीक्वेंसी विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन. देन आफ्टर दैट आप मीन एज्यूम करोगे. 25 आपने एज्यूम किया और m माइनस a करके यू हैव कैलकुलेटेड डेविएशन. नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, फिर आपको स्टेप डेविएशन करना है. स्टेप डेविएशन कैसे फाइंड किया जाता है उसके लिए सबसे पहले आप डेविएशन में देख लीजिए व्हाट इज कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर आपने जब चेक किया तो आपको 10 का लग रहा है, तो आपका कॉमन फैक्टर है 10 का. तो 10 का हम एक स्टेप ले लेंगे. किस तरीके से 10 का स्टेप लेंगे और क्या हम कैलकुलेशन करेंगे, लेट्स सी. तो स्टेप डेविएशन विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस m minus a which is also known as d. डेविएशन भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, d upon c. c means common factor and your common factor is of 10. तो आप देखो minus 20 will be divided by 10. So what will come? Minus 2. Then minus 10 will be divided by 10. What will come? Minus 1. It will come 0. Then 1 and 2. Simple. Next step में फ्रीक्वेंसी को हम स्टेप डेविएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी 20. नाउ 20 विल बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2, माइनस 40 विल कम. देन 24 विल बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1, माइनस 24 विल कम. 40 will be multiplied by 0, result will come 0. 36 will be multiplied by 1, this will come 36. And 20 will be multiplied by 20, it will come 40. Sigma f d dash equals to same way जो हमने पहले किया था 64 minus 64 is sum, then this sum is 76, it will come now 12.
फॉर्मूले में आप देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ है, मैंने स्पेशली रेड पेन से लिखा है, x bar equals to a plus sigma f d dash upon sigma f multiplied by c. c means common factor. Okay. Now c mean equals to a. हमने क्या assume किया हुआ है? 25 plus sigma f d dash is 12 upon sigma f is 140 multiplied by c. What was our common factor? That was 10. Simple. Next step. Again mean equals to 25 plus 12 will be multiplied by 10, it will come 120 upon 140, 0 से 0 कैंसिल हो गया, mean equals to 25 plus जब आप 12 को डिवाइड करेंगे 14 से it will come 0.86, so your mean will be 25.86. This will be your answer. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपने तीनों ही मेथड से मीन कैलकुलेट करना सीखा, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. ओके, अब मीन कुछ और डिफरेंट तरीके की टेबल्स, डिफरेंट तरीके की इंफॉर्मेशंस दे रखी होती है, उससे भी कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ इस डिफरेंट तरीके की कैलकुलेशन से मीन कैलकुलेट करना बताऊंगा. थैंक यू वेरी मच.